Dear students, in today's video lesson, we learn very important chapter, and that is the chapter of non-finite verbs. I have already told you various types of verbs in previous videos. In previous videos, I taught you about linking verb, action verb, causative verb, and all other verbs. Now, I am giving you very important information. All the verbs, I am telling all the verbs are either finite verbs or infinite verbs. Now let us learn what are finite verbs and what are infinite verbs. In this chapter, we will learn in very detail all about these verbs. And remember, without having good knowledge of finite and non-finite verbs, it's not possible to write correct English. Because for grammar point of view, this chapter is very important. And for competitive examinations, this chapter is highly important because many questions have been repeatedly asked about non-finite verbs. Non-finite verbs are generally, which we call, in our day-to-day life, two form of the verbs called infinitive verbs, then gerund, then participles. You might have heard all these, grammatical terms in your academic classes. But in detail, I'll tell you and will teach you every aspect of these verbs. So now let us have some examples, and through these examples I'll give you detailed information about these verbs. Okay, so now come to the point. So look at the screen of your this mobile and computer. I have given you a few sentences here, and all these sentences are from your tenses. Now come to the group number 1. The first A, B, C, all three sentences are about present indefinite. And look at the sentence. I want to play, he wants to play, they want to play. In these three sentences, there are some common points. Number 1, to form means to play are in the same form in all these three sentences. लेकिन जो मेन वर्ब want, wants and want, ये वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से बदल गई है. Because in present indefinite, in present simple, I have already told you that with I, we, you, they and plural subject, we use base form of the verb. And with singular subject and he, say, it, we add s or es with main verb, with base form. So according to that rule, I want to read, so want का use किया. He wants to read, तो wants का use किया. They want to read, play, not read, play. They want to play, तो यहां पर हमने want का यूज किया. इट मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग want, wants और want का प्रयोग किया गया. पर टू प्ले, जिसे कि सामान्य बोलचाल में हम लोग टू फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है. तीनों सेंटेंसेस में टू प्ले हैज बीन यूज्ड एज इट इज, जो कि मैंने यहां बोल्ड लेटर में लिखा है. यहां पर मेन वर्ब है want, जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से बदल. अब आइए इनके सामने तीन, जो कि हम इसके पास्ट इक्विवेलेंट सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं. आई वॉन्टेड टू प्ले, ही वॉन्टेड टू प्ले, दे वॉन्टेड टू प्ले. इट मीन्स these sentences are about past, simple past indefinite. And according to the time, we have used the past form of the main verb, जो कि wanted है. सब्जेक्ट क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, वर्ब सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं. लेकिन टाइम के हिसाब से वांट को वांटेड में बदल दिया गया इन सभी सेंटेंसेस में. अगेन यू नोटिस वन इंपॉर्टेंट थिंग. टू प्ले हैज नॉट बीन चेंज्ड, वेदर इट इज प्रेजेंट और पास्ट. तीनों पास्ट सिंपल में भी टू प्ले का ही यूज है और प्रेजेंट सिंपल में भी मेन वर्ब पर टू प्ले का ही यूज है. ओके, सो नोटिस दिस डिफरेंस, that main verb in all these sentences, main verbs in all these sentences have been changed according to the subject and according to the time. लेकिन to play यहाँ चेंज नहीं हुआ है. ओके, अब आइए सेकंड नंबर में ग्रुप ए बी सी. ये तीन सेंटेंसेस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में है. और यहां पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बी प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है प्रोग्रेसिव टेंस में. बी का मतलब प्रेजेंट में इज, आर, एम, पास्ट में वॉच एंड वर.
इसलिए ए सेंटेंस में मैंने लिखा है आई वॉज लर्निंग टू प्ले, मैं खेलना सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग टू प्ले, ही इज लर्निंग टू प्ले, दे आर लर्निंग टू प्ले। अब इन तीन सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए, यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है बी की फॉर्म्स वो इजारम बदल गई है। आई के साथ एम, ही के साथ इज, दे के साथ आर का यूज हुआ है, लेकिन तीनों सेंटेंसेस में लर्निंग में कोई चेंज नहीं है। ठीक ऐसे ही जो टू प्ले है वो भी तीनों सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं हुई है। यहां पर लर्निंग तीनों सेंटेंसेस में एक जैसा, टू प्ले भी एक जैसा। ठीक ऐसे इसके पास्ट इक्विवेलेंट सेंटेंस पे आ जाइए, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में बी की पास्ट फॉर्म वॉज वर्ब का यूज करते हैं सिमिलर सब्जेक्ट के साथ, और आई ही शी इट के साथ वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट और यू वी दे के साथ वर। सो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बन गया आई वॉज लर्निंग टू प्ले, ही वॉज लर्निंग टू प्ले, दे वर लर्निंग टू प्ले। अब यहां ध्यान दीजिए, टाइम के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब वो टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल गई है। जहां प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस हम इजारम का यूज कर रहे थे आई वी यू दे ही से के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहां पर आई ही शी इट के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। तो इन तीनों में वॉज और बदल गया, लेकिन अगेन यू नोटिस वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ these sentences, there is no change in ing form. In all these continuous tenses or even in perfect continuous tenses, we use only ing form of the verb. But no doubt, in perfect continuous sentences, we change the helping verb. In simple continuouses, we use the present and past form of be, is, are, and was were. But in perfect continuous tenses, I am, he is, she is, we are, you are changed into their perfect forms. So I am becomes I have been, he is, she is, he has been, she has been, we are, you are, they are, we have been, you have been, they have been, and past में had been with all the subject. लेकिन लर्निंग एंड टू प्ले देखिए सभी में अगेन एक जैसा है। क्लियर? और अब आ जाइए थर्ड ग्रुप में। इन these sentences are about perfect tenses, present perfect, past perfect. Though we can use all these sentences into future also, but in future with all the subjects we use shall or will to represent future tenses. Okay, so come to the group number 3A. I have decided to play, he has decided to play, they have decided to play. Notice one common thing. In perfect tenses we use past participle, means third form of the verb after has, have, had. So according to the subject, with I, we, you, they and plural subject, we use have plus third form of the verb. With he, she, it and similar subject, we use has plus third form of the subject. So here also I have decided to play, he has decided to play, they have decided to play. But in past, we use in past perfect, we use the past form of have, that is had with all the subjects and then third form of the verb. तो यहां पे देखिए I had decided to play, he had decided to play, they had decided to play. So according to time we have changed have into had. Now notice one common thing. As per subject and time, we have changed all the helping verbs has, have, had as per the subject and as per time, means as per tense. But notice one common thing. We have not changed the main verb, that is always third form or past participle in all perfect tenses. So in all these sentences we have you decided, the past participle form of decide. And also notice two form of the verb means infinitive with all in these sentences. So we have not changed decided. So now come to the important point. The verbs which change according to the subject and time
आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। फिर सुन लीजिए, जो क्रियाएं टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं उन्हें हम लोग फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर वर्ब्स सब्जेक्ट और टाइम से कंट्रोल्ड है, यानी सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग यूज की जाती है, जैसा सब्जेक्ट बदला और टाइम बदला तो वर्ब्स भी अगर उसके अकॉर्डिंग बदल जाए तो उन वर्ब्स को हम लोग फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। कौन सी वर्ब्स कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। क्लियर? नाउ नोटिस अनदर वर्ब्स इन ऑल दीज सेंटेंसेस। इन ग्रुप नंबर 1 जो मेन वर्ब वो सब कोई एक्शन वर्ब्स है, लेकिन इन सभी सेंटेंसेस में टू फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स इन्फिनिटिव टू प्ले, the verb to play remains the same whether it is present indefinite or past indefinite, or even it may be in future indefinite also, but according to subject and according to time we have changed the main verb. यहां पर to play नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। इट मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम। कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। यहां पर ये जो टू फॉर्म है यह हमेशा ही टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये इंफिनिटिव वर्ब कहलाती है। सामान्य बोलचाल में हम इसको टू फॉर्म बोलते हैं। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? टू फॉर्म, इंफिनिटिव वर्ब्स। क्लियर? चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हालांकि इस टू फॉर्म के यूज अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। ये कुछ वर्ब्स के बाद डायरेक्ट यूज किया जाता है, जैसे कि यहां वांट के साथ आया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू फॉर्म का यूज भी किया जाता है। इवन जो इज, आर, एम और लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उनके कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। इवन इस टू फॉर्म को हम सब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होती है। So we will learn various types of uses of these infinitive verbs in the chapter of infinitive verbs, and I will teach you in detail all the rules about infinitive verbs so that in competitive examinations you can spot common error easily, and in your daily communication means in your day-to-day conversation with the people you can use the correct form at the correct place in all the situations confidently, and you can speak them fluently. That I'll teach you in detail in the chapter of infinitive verbs. Okay? Now come to the group number 1. Here we have used all helping verbs according to the subject and according to the time, जो कि बी की अलग अलग फॉर्म्स थी कंटिन्यूअस टेंसेस में। इजारम वॉज चेंज होगी, बट रिमेंबर learning in all these sentences remains the same, and also the infinitive verb to play also remains the same. यहां पर to play तो infinitive verb है ही है, पर ये जो ing फॉर्म भी यहां पे यूज हुई है वो भी देखिए कहीं पर भी सब्जेक्ट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से नहीं बदली है। इन ऑल दीज सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड ओनली ing form. In grammatical term, we call it present participle. I know all of you have already heard this particular grammatical term, participle and gerund, and also present participle, past participle, and perfect participle. So in group number 2, the ing form of learn, that is learning, is present participle, and it does not change according to the subject and time. These are also called non-finite verbs. It means, again, remember, non-finite verbs don't change their forms according to subject and time. Learning, ing form of this learn remains the same in all these sentences. This is called
प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं आपको डिटेल में इसको अभी यहाँ पे लिखूंगा, तो आप नोट कर लीजिए, जगह थोड़ी कम है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। और ये सबके सब नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। So we have divided all the verbs. I am talking here about all the verbs. Either they are finite or non-finite. We can divide them only into two categories. Okay. Now come to the group number 3. These sentences are about perfect tenses. And in perfect tenses, you know that we use past participle form after have or other forms of this have, has, had. Okay. So in present perfect with I, we use, they, we use have, then third form. And with similar subject, he, she, it, and similar subject we use has plus third form of the verb. जैसा कि I have decided to play, he has decided to play, they have decided to play. And in past perfect we use the past form of have, that is had, and then third form of the verb. यहाँ पर I had decided to play, he had decided to play, they had decided to play. अब important बात, observe one important point, notice one important point. We are changing the helping verbs have, has, had as per the subject and time. Present में I, we, you, they plus plural subject के साथ have, he, she, it plus similar subject के साथ has. लेकिन past perfect में सभी subjects में भी similar में भी plural हम यूज करेंगे had. तो यहां पर सब में है जब तो चेंज हो गया, ये कहलाता है फाइनाइट वर्ब्स। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी। बट डिसाइडेड टू प्ले, तो जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ डिसाइड ऑल्सो रिमेन्स द सेम, डिसाइडेड इन ऑल दीज सेंटेंसेस। इसे भी हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिन पर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता, वो नहीं बदलती नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टाइम के हिसाब से। यानी सब्जेक्ट और टाइम का नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट अफेक्टेड एट ऑल। इसलिए इन सभी सेंटेंसेस में डिसाइड की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड का यूज किया है, जिसे हम लोग ग्रामर में बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसका ग्रामेटिकल टर्म क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। साथ में ध्यान दीजिए, टू प्ले में भी कोई चेंज नहीं हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। क्लियर? तो इन्फिनिटिव वर्ब में भी कोई चेंज नहीं है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, सिंपल हो, प्रोग्रेसिव हो, परफेक्ट हो। टू फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भी हर हाल में सेम ही रहती हैं। टू के बाद अगर वर्ब लगानी हो तो हम लोग सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते, थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, और इवन वर्ब के रूप में तो हम आईएनजी फॉर्म भी नहीं लगा सकते। पर कुछ सेंटेंसेस में एक्सेप्शनली टू के बाद आईएनजी फॉर्म मिलती है, लेकिन वो आईएनजी फॉर्म इन्फिनिटिव वर्ब नहीं होता, वो नाउन का काम करती हैं, जिन्हें हम लोग ग्रामर में जेरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंट। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये पार्टिसिपल क्या होता है, जेरेंट क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक बार फिर आप इन सभी सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि इनमें फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं। तो सुन लीजिए एक बार फिर, अगर वर्ब्स सब्जेक्ट और टाइम के हिसाब से बदल जाती हैं तो वो फाइनाइट वर्ब्स, और जो वर्ब्स सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बदलती हैं वे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आपके सामने नॉन फाइनाइट वर्ब्स अभी तीन कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। पहला मैंने कहा टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे ग्रामर में हम लोग बोलते हैं इंफिनिटिव वर्ब। देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आईएनजी फॉर्म द वर्ब के दो काम हैं, ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करें तो इन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करें, यानी पार्टिसिपल क्या होता है आप नोटिस कीजिएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं,
वर्ब की कोई फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो हम उन्हें पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर है? या आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। ठीक, तो यहां पर सेकंड ग्रुप में जो भी आईएनजी फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो हम इस आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पर ध्यान दीजिए, अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो इसे हम लोग जेरंड कहते हैं। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो जो आईएनजी फॉर्म स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, तुमने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहां स्मोकिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है और सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहां पर ये स्मोकिंग जेरंड है जो वर्ब और नाउन का काम करता है। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, आई हेट स्मोकिंग। सो हेट का ऑब्जेक्ट आई हेट वॉट, जवाब मिला स्मोकिंग, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन या उनके इक्विवेलेंट वर्ड्स होते हैं। तो यहां पर दोनों सेंटेंसेस में स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आई हेट स्मोकिंग, ये जेरंड है स्मोकिंग। ओके, थर्ड ग्रुप में आ जाइए। डिसाइडेड को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, दोनों को मिक्स कर दे यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे कि हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो आपके सामने यहां पर आपने तीन तरीके के ग्रुप को स्टडी किया। टू फॉर्म द वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म कहलाता है आपका इंफिनिटिव वर्ब। सो सभी सेंटेंसेस में इन जो भी सेंटेंसेस तीन ग्रुप में मैंने यूज किए सभी में देखिए बोल्ड लेटर्स में लिखा टू प्ले, कोई चेंजेस नहीं है। प्रेजेंट पास्ट और इवन फ्यूचर में भी, इवन सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट में भी कोई चेंज नहीं है। सेकंड ग्रुप में सभी में आईएनजी फॉर्म कोई चेंज नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। और थर्ड ग्रुप में थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कोई चेंज नहीं। ये मैंने आपको टेंसेस में कैसे यूज हुआ वो मैंने बताया। अब मैं आपको इसके कुछ अदर यूसेस और बताना चाहता हूं। और आइए अब आपके सामने मैंने तीन ग्रुप में फिर सेंटेंस दिए। देखिए पहले तीन सेंटेंस मैंने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के दिए। प्रेजेंट सिंपल जो पहला ग्रुप है, आई सेल यूज्ड कार्स, ही सेल्स यूज्ड कार्स, दे सेल यूज्ड कार्स and we sold used cars. So according to the subject and tense we are using various forms of sell. लेकिन जो यहां पर कार्स के पहले विशेषता बताने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया यूज्ड, इसका मतलब पुरानी कारें, काम में ली हुई कारें, ओल्ड कार्स। यहां पर यूज्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ और चूंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कार की विशेषता बता रहे हैं, तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए यानी वो एडजेक्टिव का काम करे, ध्यान दीजिएगा किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम करे, तो ऐसी इन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ग्रामर में हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से नोट कर लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और इन सभी सेंटेंसेस में देखिए ये फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल है, ग्रुप टू में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस we have changed the helping verb in all these sentences. Either
I am selling used cars. I was selling used cars. He is selling used cars. He was selling used cars. They are selling used cars. They were selling used cars. क्या इन सभी सेंटेंसेस में यूज्ड में कुछ बदलाव हुआ? नहीं हुआ। और ये किसी नाउन के पहले यूज होकर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। क्लियर है? इसे हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। जब हम किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाते हैं तो वो एट्रीब्यूटिव यूज कहलाता है, पर यदि लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं तो वो प्रेडिकेटिव यूज कहलाते हैं। ओके, अब आ जाइए ग्रुप नंबर थर्ड। यहां पर मैंने ये जो सेंटेंसेस दिए हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट दिए, ये फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टाइम we have changed the helping verb have. I have sold used cars. He has sold used cars. They have sold used cars. We had sold used cars. ये चाहे आई भी यू दे कोई भी हो, पास्ट परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का यूज होता है। बट अगेन यू ऑब्जर्व एंड नोटिस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड मीन थर्ड फॉर्म ऑफ यूज, कहीं बदलाव नहीं है, सभी में कार की विशेषता बता रहा है। ये सब पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं और ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। सो पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करे। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी होता है। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक, आइए प्रेजेंट पार्टिसिपल और समझते हैं। जैसे यहां एट्रीब्यूटिव यूज हुआ नाउन के पहले, वैसे देखिए यहां पे समझिए। ग्रुप नंबर 1 में सेंटेंस है आई हेल्प द सफरिंग पीपल, मैं पीड़ित लोगों की सहायता करता हूं। ही हेल्प द सफरिंग पीपल, दे हेल्प द सफरिंग पीपल, वी हेल्प द सफरिंग पीपल। यहां पे हेल्प, हेल्प्स, हेल्प और हेल्प्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस मीन्स टाइम, मेन वर्ब हेल्प को बदल दिया गया है। लेकिन पीपल के पहले जो पीड़ित के रूप में जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म सफर की आईएनजी फॉर्म सफरिंग का यूज हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यहां सभी जगह पर सफरिंग को पीपल के पहले एडजेक्टिव के रूप में एट्रीब्यूटिव यूज किया गया है। ये भी सब एडजेक्टिव का काम कर रही है, ये आईएनजी फॉर्म, पर मेन वर्ब बदल गई है। देखिए हेल्प, हेल्प, हेल्प्ड। ओके, आइए ग्रुप नंबर 2, ये सब प्रोग्रेसिव टेंसेस में। आई वॉज हेल्पिंग द सफरिंग पीपल, आई एम हेल्पिंग द सफरिंग पीपल, ही इज हेल्पिंग द सफरिंग पीपल, ही वॉज हेल्पिंग द सफरिंग पीपल, दे आर, ये दे कर लीजिए, दे आर हेल्पिंग द सफरिंग पीपल, दे वर हेल्पिंग द सफरिंग पीपल। सो क्या बदला अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट? ओनली हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम वॉज वर। लेकिन एक तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग यूज हुआ, देखिए वो चेंज नहीं हुआ। साथ में एडजेक्टिव के रूप में जो एट्रीब्यूटिव यूज है सफरिंग, ये चेंज नहीं हुआ। ये सब कहलाती हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पर ध्यान दीजिए, इस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यदि ये नाउन का काम करे तो हम जेरेंड कहते हैं, और अगर ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल ये वर्ब और एडजेक्टिव का काम करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ग्रुप में परफेक्ट टेंसेस में। परफेक्ट में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज और हैड का यूज करते हैं, सब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग। बाकी कहीं पर भी देखिए सफरिंग चेंज नहीं हुआ। साथ में जो भी कंटिन्यूअस में और परफेक्ट में, वो कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब की और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की यूज करते हैं, उन पर भी सब्जेक्ट और टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो ग्रुप 2 में प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन सी है? नॉन फाइनाइट वर्ब। सो अभी तक आप दो तरीके की नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ चुके हैं। इन्फिनेटिव वर्ब्स, टू फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जिसे कहते हैं, देन आईएनजी फॉर्म,
जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। लेकिन यदि वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो वो जेरंड कहलाता है। क्लियर? जैसे आई कांट टॉलरेट सफरिंग, सो आई कांट टॉलरेट वॉट, यू विल गेट द आंसर सफरिंग। दिस सफरिंग इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट हियर। ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है और सफरिंग नाउन यूज होगी। ओके, आइए अब हम देखते हैं थर्ड नंबर में, और सब में ध्यान से देखिए। ग्रुप नंबर 1, ये प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस है। आई अवॉइड ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग का मतलब जो तेज गति से जो गाड़ियां चलाते हैं, तो तेज गति से गाड़ी चलाने को अवॉइड करता हूं। सो आई अवॉइड व्हाट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में मिला। ऑब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होता है, और ये जो नाउन है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो इसे हम लोग जेरंड कहते हैं। क्या कहेंगे? जेरंड कहेंगे। ठीक, ये सब्जेक्ट भी हो सकती हैं, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं। जैसे ओवर स्पीडिंग इज ऑलवेज डेंजरस, कि तेज गति से गाड़ी चलाना यानी ओवर स्पीडिंग खतरनाक होती है। क्लियर? सो ये सभी देखिए ग्रुप 1 में, he avoids over speeding, they avoid over speeding, we avoided over speeding. So according to the tense and subject, main verb avoid की अलग अलग फॉर्म यूज की गई। avoid, avoids, avoided. Okay, come to the group number 2. ये सब प्रोग्रेसिव टेंसेज है, प्रेजेंट एंड पास्ट। ये फ्यूचर भी हो सकता था। आई एम अवॉइडिंग ओवर स्पीडिंग, आई वॉज अवॉइडिंग ओवर स्पीडिंग, he is avoiding over speeding, he was avoiding over speeding, they are avoiding over speeding, and they were avoiding over speeding. ओके, ये भी क्या है? सिंपल कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हेल्पिंग और बदल गई, पर ओवर स्पीडिंग देखिए सभी में जो कि अवॉइड का ऑब्जेक्ट है कोई बदलाव नहीं है। ठीक, ऐसे ही ग्रुप नंबर 3 देखिए, ये परफेक्ट टेंसेज है, ये पास्ट परफेक्ट भी हो सकता था। जैसे वी हैड अवॉइडेड ओवर स्पीडिंग, सो ये आई हैव अवॉइडेड ओवर स्पीडिंग, ही हैज अवॉइडेड ओवर स्पीडिंग, वी हैड अवॉइडेड ओवर स्पीडिंग। सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस हेल्पिंग वर्ब बदल गई, लेकिन यहां पर जो ऑब्जेक्ट के रूप में ओवर स्पीडिंग है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं है। यह है यहां पर जेरंड। क्या है ये? जेरंड। क्लियर है? तो ध्यान से आपने ये देखा और किस तरीके से इनका यूज किया जाता है ये आपने देखा। तो यहां पर 2 कॉन्सेप्ट आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट आए। एक बार बार आ रहा फाइनाइट वर्ब, दूसरा आ रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यह समझा दूं, फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट वो सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, साथ में टाइम के अकॉर्डिंग भी बदल जाती हैं। वे फाइनाइट वर्ब्स। इट मीन जो मैंने आपके सामने यहां पर इसका जो मीनिंग लिखा है, यू रीड इट केयरफुली। व्हेन ए वर्ब इन्फ्लेक्ट्स फॉर इट्स टेंस एंड एग्रीज इन नंबर विद द सब्जेक्ट, इट मीन्स व्हेन ए वर्ब चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस, इट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ध्यान से देखिए, जब वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग इन्फ्लेक्ट हो जाता है यानी अपने रूप बदल लेता है, साथ में अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, इट मींस इसका मतलब जब वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म्स बदल लेती हैं तो हम उन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। अगेन देखिए, ए फाइनाइट वर्ब इज कंट्रोल्ड, restricted, limited by the number, person and tense of its subject. Generally, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म और उसकी एस फॉर्म
second form यानी past form, helping verbs is are and was were, has have had और even modal verbs भी finite verbs होती हैं. So दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने verbs, finite, नॉन फाइनाइट. आपने देख लिया फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिन पर सब्जेक्ट और टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, यानी वे सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है. बहुत क्लियरली देखिए मैंने लिखा है, व्हेन ए वर्ब डजंट इन्फ्लेक्ट फॉर इट्स tense and need not agree in number with the subject, it means the verb doesn't change its form according to its subject and tense. It is called non-finite verb. समझिए, जब verb tense के अकॉर्डिंग इन्फ्लेक्ट नहीं होती यानी अपनी फॉर्म नहीं बदलती, साथ में जो भी सब्जेक्ट है उसके नंबर के अकॉर्डिंग भी उसे सहमत होना जरूरी नहीं है, यानी उसके अकॉर्डिंग से यूज किया जाना जरूरी नहीं है. इट मीन्स इसका मतलब कि वर्ब्स यानी वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म्स को बदल लेती हैं उन्हें हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं. ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट कंट्रोल्ड, रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड बाय द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट. जबकि यहां पर है कि ए फाइनाइट वर्ब इज कंट्रोल्ड. यहां पे देखिए, ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट कंट्रोल्ड, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता. अब जो मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स को तीन कैटेगरी में बांटा था, उनमें एक तो था टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना. उसके अलग अलग फंक्शंस हैं. वो नाउन का काम भी कर सकते हैं, इवन वो जिसे कहना चाहिए एडजेक्टिव का काम भी कर सकते हैं, इवन एडवर्ब का काम भी कर सकते हैं. कहने का मतलब कि वर्ब की टू फॉर्म, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद टू फॉर्म का यूज कर सकते हैं. जैसे आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, तो आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, तो टू वर्क हार्ड यहां पर स्टूडेंट्स के बाद यूज हुआ है. ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कहते हैं ना टू अर्र इज ह्यूमन, गलती करना मानव स्वभाव है. ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. क्लियर? तो टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके अलग अलग यूज है, पर जेरंड और पार्टिसिपल के यूज लिमिटेड है. सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं उसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. ठीक, तो जेरंड और पार्टिसिपल क्या होता है? देखिए, जेरंड हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, मैंने लिखा है, पर कब? जब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो इसे जेरंड कहते हैं. सामने लिखा हुआ देखिए आपके, व्हेन द आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब एक्ट्स पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली ए नाउन, इट इज कॉल्ड जेरंड. यानी जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म अंशतः वर्ब और अंशतः नाउन, यानी वो वर्ब का काम भी करे और वर्ब का काम भी करे, यानी पूरी तरीके से नाउन भी नहीं है तो पूरी तरीके से वर्ब भी नहीं, दोनों का मिला जुला रूप है. इसलिए पार्टली ए वर्ब, पार्टली ए नाउन, अंश यानी कुछ अंश, जेरंड कहलाएगा. क्या कहलाएगा? जेरंड. ओके, आइए पार्टिसिपल. पार्टिसिपल वर्ब की दो फॉर्म्स को कहते हैं. नंबर एक, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. कब कहते हैं? डेफिनेशन ध्यान से देखिए. व्हेन द आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों आ गई. व्हेन द आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ ए वर्ब acts as partly a verb and partly an adjective, it is called participle. कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म अंशतः वर्ब हो और अंशतः एडजेक्टिव, यानी वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे, तो हम इसे क्या कहेंगे?
पार्टिसिपल कहेंगे। अब ये पार्टिसिपल मेन दो कैटेगरी में, और इन दोनों को मिला के तीसरा पार्टिसिपल और बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए, अभी तक आप जो भी वर्ब्स को पढ़ चुके हैं, मैंने इन वर्ब्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर एक, फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब्स होती हैं? जो सब्जेक्ट और टेंस टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं। जनरली वर्ब की बेस फॉर्म, इसकी एस फॉर्म, वर्ब की पास्ट सिंपल फॉर्म, जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड और इवन मॉडल्स, ये फाइनाइट वर्ब्स होती है। दूसरा कैटेगरी मैंने बनाया नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नोट कर लीजिए, ये जो मैं लास्ट में जो मैं कंक्लूजन के तौर पे लिखा रहा हूं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंफिनिटिव वर्ब्स। इंफिनिटिव कहने का मतलब टू फॉर्म ऑफ ए वर्ब, पर इसके जो यूज है वो काफी है। ये सब्जेक्ट यानी नाउन की तरह से भी यूज करता, तो विशेषता बताने के लिए भी काम करता है। क्वालिफाइंग इंफिनिटिव वर्ब्स भी होती हैं, तो हम इसको नाउन इंफिनिटिव वर्ब्स भी कह सकते हैं। ठीक, यानी ये सब्जेक्ट भी काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। ये टेंस के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बदलती, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं बदलती। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जेरंट। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स को कहते हैं, लेकिन कब? जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो यह जेरंट कहलाता है। क्लियर हो गया? तीसरा है पार्टिसिपल। कौन सा? पार्टिसिपल। ये तीन कैटेगरी में बांटेंगे। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल नोट कर लीजिए इसको। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन कब? जब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे। सॉरी, ये गलत हुआ, ये एडवर्ब का काम करे, गलती से बोला मैंने। ये एडजेक्टिव का काम करे, तो इसे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन जब यही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। ये भी जब वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो इसे हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो फिर से मैं आपको समरी के रूप में बता दूं, सभी वर्ब्स, जितनी भी वर्ब्स है, वे या तो फाइनाइट्स होती हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स जो सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाए, उन्हीं से कंट्रोल्ड रहती हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिन पर सब्जेक्ट और टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीन होती हैं, इंफिनिटिव वर्ब, जेरंड एंड पार्टिसिपल। इंफिनिटिव वर्ब का मतलब टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, जेरंड का मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब वर्ब और नाउन का काम करे। पार्टिसिपल दो बांटेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को जोड़कर एक परफेक्ट पार्टिसिपल और बनता है। मैंने नाम दिया परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट टेंसेस में क्या होता है? हैज हैव हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक इसी स्ट्रक्चर के आधार पर परफेक्ट पार्टिसिपल में हैव की आईएनजी फॉर्म को लेंगे, प्लस इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर को, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों का मिला जुला रूप है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से आईएनजी फॉर्म लिया गया हैविंग, और पास्ट पार्टिसिपल से थर्ड फॉर्म लिया गया, तो ये बन गया हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसे हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट
पार्टिसिपल कहेंगे। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन फाइनाइट वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नॉन फाइनाइट वर्ब्स को लेकर बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। होना चाहिए यानी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब दे देते हैं, आईएनजी फॉर्म, या फिर कुछ वर्ब्स के साथ टू फॉर्म का यूज होता है, कुछ वर्ब के साथ जेरेंड यानी आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, तो हम लोगों को पता नहीं होता है। कुछ चीजें तो यहां पर हम लोगों को याद रखने वाली है, यानी हमको एज यूजुअल उन्हें रटना है। जैसे कि एग्री के साथ, वांट के साथ, ऐसे कुछ वर्ब्स के साथ केवल इंफिनिटिव वर्ब का यूज होता है। जैसे आई वांट टू गो, आई एग्री टू पे द मनी। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद आईएनजी फॉर्म यानी इंफिनिटिव वर्ब नहीं, डायरेक्टली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, यानी आईएनजी फॉर्म का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, या कभी कभार जेरेंड आता है, नाउन आता है। जैसे आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, तो ये जेरेंड है। आई एंजॉय व्हाट, जो मिलेगा रीडिंग बुक्स। तो एग्जामिनेशंस में इन्हीं कुछ रूल्स को देखते हुए ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी स्टूडेंट्स and those who are interested to enhance their knowledge of grammar must watch this video very carefully. And also I would like and recommend very strongly you must read any good grammar book or the grammar book of ours, means UAM English grammar book, which I have written. Presently our UAM grammar book is available with all the video lessons of all the chapters. So you have two benefits. Number one, you will have hard copy of our grammar book, and also you will have the video lessons of all the topics which I have given in my grammar book. So you take this opportunity, grab the opportunity, buy the book today itself only. Our books are available on Amazon and also Flipkart, or directly you visit our website and you can purchase them from also. And before buying our book, UAM English Grammar, even you can read this grammar book as e-book on our website. So before you purchase, you read the whole book, not a few pages. You read the whole book on our website and ensure whether it will be useful for you or not. If you find that it will be highly useful to help you enhance your knowledge of grammar, then you buy it. Okay? Thank you very much. Have a nice day.